Okay, good morning, students. This is what we are starting, and let's see the information of the lecture. September 17, 2020, class 9th, subject English, and we are practicing grammar. It's a practice session, students, though your exams are approaching, and thus you know that you're going to have your subjective exams. For that, you need to just do one thing. You just need to prepare yourselves properly, and grammar is going to play a very critical role because you'll get the grammar of 10 marks in 50 marks question paper. The question paper will be of 50 marks, and you'll get the grammar of 10 marks, and the grammar will remain the same, like uh, in the editing form, and in the omissions, and in the fill in the blanks form, right? And rearranging the words. While arranging the words, you just need to format the sentence. So you'll get these points basically, and there you'll get it'll be of 10 marks. That you need to consider it in a proper way, every one of you. So just need to do one thing. You just need to raise your hand if you find any difficulty or any problem with all people. Okay, see now, so today we are going to discuss this determinants, right? Determinants means like we did it in the earlier classes also, students. This is one of the parts of your adjective and article, right? So let's see, this page, this first page is a bit rough. Rest you'll get the proper. Determinants are what basically? Determinants are words that modify nouns. In other words, determine the words which can be used before nouns to determine or to modify their meaning. Meaning in the sense वो कहता है कि भाई इनमें कुछ additions करते हैं वो, right? There are these some additions of this. तो इसमें हम लोग करते क्या है, what we find, जो हमारे determinants होते हैं, these are articles and adjectives, right? क्योंकि दोनों का जो मीनिंग होता है ना, दोनों का जो वर्क होता है, दैट इज सेम, टू जस्ट क्वालिफाई द नाउन. नाउन के बारे में कुछ पता. So let's just practice without wasting time because we need to practice of the editing also. Determiners and kinds of nouns with which they are used. एक तो determiners कौन से और किस तरह के nouns के साथ वो यूज होते हैं. ये बात अच्छे से समझ लो स्टूडेंट्स. जो nouns होते हैं उनकी कुछ kinds होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स. काउंटेबल्स जो हैं सिंगुलर काउंटेबल्स भी होते हैं और प्लूरल काउंटेबल्स भी होते हैं, राइट एवरीवन? सिंगुलर काउंटेबल मींस लाइक सिंगल के लिए यूज होते हैं. प्लूरल मींस एक से ज्यादा के लिए यूज होते हैं. अनकाउंटेबल मींस जो गिनती नहीं होती है, काउंटिंग वेट होता है, वे करना जिसको हम बोलते हैं, वजन करना बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड अनकाउंटेबल, जिसके लिए हम लोग यूज करते हैं. दीज आर स्मॉल पॉइंट्स. So let's start. A, N, each, everyone, another, and either are used with singular countable nouns. The first line है, ये singular countable nouns के लिए यूज होते हैं ये determinants. Singular means एक, या तो एक को बताएंगे या दो में से एक, दो से ज्यादा में से एक, लेकिन डिफाइन सिर्फ एक को ही करेंगे, यानी किसी एक सिंगुलर चीज को डिफाइन करेंगे. सो दैट्स कॉल्ड दिस वन. उसके बाद जो है this and that are used with uncountable nouns oblique singular countable nouns. अनकाउंटेबल जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते, और सिंगुलर जो कि एक को डिनोट करते हैं, दिस बुक, दैट बुक, राइट? और फिर these and those are used uncountable nouns और oblique plural countable nouns. प्लूरल के लिए यूज होंगे और फिर अनकाउंटेबल के लिए यूज होंगे, राइट एवरीवन? A little, a lot of, a great of, deal of, much are used with uncountable. ये सारे के सारे uncountable के साथ यूज होंगे, यानी कि जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं. more, most, a lot of, enough, adequate, some are used with uncountable nouns, right? A few, several, many, both are used with प्लूरल नाउन्स, और ये सारे के सारे प्लूरल के साथ यूज होते हैं. इसके बाद कुछ ऐसे बचते हैं जैसे द, सम, एनी, माय, हर, योर. ये जो है किसी भी तरह के नाउन के साथ यूज होती है. नाउन को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है. सिंगुलर यानी एक के लिए, प्लूरल एक से ज्यादा के लिए, और अनकाउंटेबल जो कि गिनती के लिए यूज नहीं होता है.
दैट्स कोल्ड. सो लेट्स स्टार्ट. आर्टिकल्स. आर्टिकल्स क्या होते हैं? ए एन, द. आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर नाउन्स. नाउन से पहले हम इनको यूज करते हैं. दो तरह के आर्टिकल होते हैं, इंडेफिनेट और एक होता है हमारा द डेफिनेट, राइट? सो लेट्स सी. Indefinite articles a and n. A is used before a noun beginning with a consonant sound. और ये जो है consonant sound के साथ शुरू होता है. A woman, a horse, a university. Here woman, horse and university are words beginning with the consonant sound. An is used before a noun beginning with a vowel sound, जो कि vowel sound के साथ शुरू होता है. An orange, an egg, an elephant. Now see students, मैं how to use a and n ये आप खुद रीड करेंगे, लेकिन मैं आपको अपनी लैंग्वेज, इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ. हमारा जो कॉन्सोनेंट और वॉल्स का चक्कर होता है ना, ये लेटर्स को ना लेकर के साउंड्स को लेकर के होता है. साउंड्स को लेकर के कैसे होता है? किसी भी वर्ड का पहला लेटर जो है वो वोवल हो सकता है, लेकिन उसका जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट होता है किसी भी वर्ड का. तो वो जो है हम वहां पर एन यूज ना करके अ यूज करते हैं. जैसे कि देखो इसमें दिया हुआ है अ यूनिक थिंग, अ 1 रुपी कॉइन, अ यूरोपियन, अ यूनिकॉर्न. ठीक है. और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कंसोनेंट लेटर से शुरू होते हैं, लेकिन उनका जो साउंड होता है वो वोवल होता है. जैसे कि एन आर, एन ऑनेस्ट मैन, एन ईयर, एन एम सी ए, राइट? इस तरह से. सो जस्टिफाई हमें करना क्या है? वी नीड टू अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ द वर्ड, देन वी नीड टू पुट ए एंड एन देयर, राइट? ये ऑलरेडी हम 7th 8th में कर चुके हैं, दो इट्स अ प्रैक्टिस सेशन. ये सारी प्रैक्टिस हो रही है, रिवीजन हो रहा है हमारे डिटर्मिनर्स को लेकर के, राइट एवरीवन? सी द नेक्स्ट वन. यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द. अब डेफिनेट आर्टिकल द जो है ना, it the is used before singular countable nouns, plural countable nouns, uncountable nouns. Uncountable nouns do not have plural form. अब उनकी कोई plural form नहीं होती. अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि uncountable, इनको definite articles को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं thoroughly, right? द इज यूज्ड, यानी कि द को हम जो है किसी भी आर्टिकल के साथ लगा सकते हैं, लेकिन उसमें एक पॉइंट मेंशन करना होता है while talking about a particular person or thing. जब हम विशेषकर किसी एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में जब बात करते हैं ना, सो थिंग और वन ऑलरेडी रेफर टू, दैट इज व्हेन इट इज क्लियर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट विच वन डू वी मीन, कि हमारा जो, जब हम किसी भी एक पर्टिकुलर चीज को रेफर करते हैं ना, पर्टिकुलरली उस चीज को पर्टिकुलराइज कर देते हैं, विशेष कर देते हैं, उसको एम्फोसाइज करते हैं, देयर वी यूज द. लाइक द बुक यू वांट इज नॉट अवेलेबल. भाई वो बुक जो आपको चाहिए वो अवेलेबल नहीं है. when the singular noun represents the whole class, और जब सिंगुलर नाउन जब होल क्लास को, किसी भी एक प्रजाति को, क्लास को डिनोट करे, तब भी हम दा लगाते हैं. द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, यानी कि पूरी प्रजाति, पूरी जाति को जो वो रिप्रेजेंट करता है, कंप्लीट क्लास जो होती है डॉग की, कि ये फेथफुल होते हैं, राइट? बिफोर सम प्रॉपर नेम्स दैट डिनोट फिजिकल फीचर्स. ये आप स्टडी करेंगे सारे के सारे. ओशियंस एंड सीज, रिवर्स, कैनाल्स, डेजर्ट्स, ग्रुप्स एंड आइलैंड्स, इन सब के साथ द लगता ही लगता है. दिस वी स्टडीड इन 8th and 7th also. So you'll just have a pause of the video when you get this and then practice this. Let's see the next one. Before the names of the rivers and this not religious books of और mythological books, religious books की जब आप बात करते हो और mythological books की जब बात करते हो, like the Vedas, the Puranas, the Mahabharatas, so जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं, धार्मिक पुस्तकें होती हैं, उनके लिए भी हम लोग द यूज करते हैं, क्योंकि ये विशेष है, पर्टिकुलर है, राइट? सो बिफोर the name of things which are unique or one of their kind. यूनिक, सन एक यूनिक चीज है, मून एक यूनिक है, पैसिफिक एक यूनिक है. हमारे वर्ल्ड के अंदर बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो यूनिक है. फॉर रेफरिंग देम और रिप्रेजेंटिंग देम वी यूज द डेफिनेट आर्टिकल, राइट एवरीवन? बिफोर अ प्रॉपर नाउन, when it is qualified by an adjective or a defining adjectival clause. जब आप किसी एक पर्टिकुलर एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहे होते हैं, जैसे कि ग्रेट सीजर, द ग्रेट सीजर बना रहे हैं, द किंग ऑफ रोम, उसको जब आप पर्टिकुलराइज करते हो, प्रॉपर नाउन को जब पर्टिकुलराइज फॉर्म में एज एन एडजेक्टिव
यूज करते हो, वो क्लोज नाउन को क्वालिफाई कर रहा होता है, सो वो जो है हमारा, उसके लिए हम लोग द यूज करते हैं। विद सुपरलेटिव डिग्रीज, विद ऑर्डिनल। सुपरलेटिव डिग्री का तो बड़ा इजी, सब पता है, द मोस्ट, द वर्स्ट, ठीक है। और ऑर्डिनल्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स के टू पार्ट होते हैं काउंटिंग में, कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स। कार्डिनल्स होते हैं बच्चों 1 2 3 4, और ऑर्डिनल्स होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ही वॉज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून, कि भाई वो पहला आदमी था जो चंद्रमा पर गया। बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ही कैन प्ले द तबला वेरी वेल, कि वो तबला बजा सकता था अच्छे से। बिफोर एन एडजेक्टिव, व्हेन द नाउन इज अंडरस्टूड। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनको प्लूरल नाउन बना दिया जाता है, जैसे कि रिच है, पुअर है। अब इनसे पहले अगर द लगा दिया जाए ना डेफिनेट आर्टिकल, तो ये प्रॉपर नाउन का काम करते, प्रॉपर नाउन का काम करते हैं, प्रॉपर नाउन की तरह। The rich always exploit the poor. The rich means proper noun, common noun, sorry, not a proper noun, common noun. Common noun की तरह ये वर्कआउट करते हैं, जो प्लूरल सेंस में यूज होता है, कॉमन नाउन। द रिच ऑलवेज एक्सप्लॉइट द पुअर, यानी कि जो अमीर आदमी होते हैं वो गरीबों को जो है एक्सप्लॉइट करते हैं। द रिच, कॉमन नाउन जो कि प्लूरल सेंस में यूज करते हैं, उसकी तरह वर्कआउट करते हैं ये। एज एन एडवर्ब विद कंपैरेटिव्स, और जब एडवर्ब्स की तरह भी काम करता है ये, जब कंपैरिजन दिखाया जाता है। व्हेन देयर इज कंपैरिजन, व्हेन कंपैरिजन इज शोन, देन इट वर्क्स एज एन एडवर्ब। द मोर मनी वी हैव, द मोर वी वांट। नाउ अंडरस्टैंड, जितना और उतने की सेंस में यूज होता है ये, कि भाई जितने पैसे हमारे पास हैं, द मोर मनी वी हैव, जितने पैसे हमारे पास हैं उतने ही हमें चाहिए, उतने ही हम चाहते हैं, द मोर वी वांट। सो व्हाट वी अंडरस्टैंड हियर, कि जब आप एडवर्ब को कंपैरिजन में शो करते हो इन बोथ द पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, द कंपैरिजन और कंपैरेटिव वर्ड्स के सामने जो हम लोग इसको यूज करते हैं, वी यूज इट विद द कंपैरेटिव वर्ड्स। जो कंपैरेटिव वर्ड्स होते हैं, जो कंपैरिजन वाले वर्ड्स होते हैं, उनसे पहले जो है हम लोग इसको यूज करते हैं। द मोर मनी वी हैव, जितना हमारे पास है, द मोर वी वांट, उतना ही हम चाहते हैं। द मोर यू वर्क हार्ड, द मोर मार्क्स यू विल गेट, जितनी मेहनत तुम करोगे उतने ही ज्यादा तुम्हारे मार्क्स आएंगे। द मोर, राइट। सो कंपैरेटिवली एडवर्ब के साथ आप इसको यूज करते हो। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। नाउ सी द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, दिस दैट दीज दोस। दिस और दैट जो है ये सिंगुलर के लिए यूज होते हैं, दीज और दोस जो है प्लूरल के लिए यूज होते हैं। दिस दैट इन केस ऑफ प्लूरल दोस, दैट सिंगुलर है और प्लूरल दोस है। अब सबसे मेन पॉइंट क्या होता है, इट इज यूज्ड टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ द प्रीसीडिंग नाउन्स। इसको जो हम लोग यूज करते हैं, नाउन के रेपिटेशन को रोकने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। वी यूज दिस टू स्टॉप द रेपिटेशन ऑफ द नाउन। और एग्जाम्स के अंदर इसका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्रिएट होता है बच्चों। अब समझना, माई बैट इज बेटर देन दैट ऑफ माई फ्रेंड। एक तो माई बैट और हिज बैट होना था, माई बैट इज बेटर देन माई फ्रेंड्स बैट। बैट को जो है रेपुटेशन को रोक दिया, एक तो ये यहां पर पता चलता है, और सेकेंडली माई बैट इज बेटर देन दोज ऑफ माई फ्रेंड्स। सो दोज यहां पर जो है गलत हो जाता है, इनकरेक्ट में दोज आएगा और करेक्ट में आप दैट लिखोगे, ठीक है। अभी आगे जो लास्ट में एक्सरसाइज करेंगे वहां पे तुम्हें ये पता चलेगा। Our soldiers are better equipped than those of Pakistan. अब सोल्जर्स जो है प्लूरल था तो इसलिए दोज आ गया, अगर सोल्जर होता ओनली तो दैट आ जाता। तो ये पॉइंट समझने वाला है, रिमेंबर दिस। इट रेफर्स टू पर्सन्स और थिंग्स फार फ्रॉम द स्पीकर। जो स्पीकर बोल रहा है उससे जब कोई चीज दूरी पर है तो हम लोग उसके लिए दैट यूज करते हैं, राइट एवरीवन। गेट दैट डॉग आउट ऑफ हियर, आप कहते हो दैट बुक इज माइन, दैट इज माई डॉग, दैट इज माई पेन। दूर है आपसे, फार। दोज हाउसेस आर फॉर सेल। और प्लूरल्स की जब बात करते हो, दैट की जगह आप जो है दोज यूज करते हो, रिमेंबर दिस। व्हेन यू गेट द प्लूरल यू यूज देयर दोज। दिस इन केस ऑफ प्लूरल दिस, सिंगुलर के लिए दिस होता है और प्लूरल के लिए हम लोग दीज यूज करते हैं। इट रेफर्स टू पर्सन और थिंग नियर, नजदीक की कोई चीज जो है, दिस और दीज। दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, दीज फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल, वी आर इन प्रैक्टिस।
अब क्वांटिफायर्स पे आ जाते हैं बच्चों सारे के सारे। क्वांटिफायर्स क्या होते हैं? सम, मैनी, अ लॉट ऑफ, अ फ्यू ऑफ आर एग्जांपल्स क्वांटिफायर्स can be used in affirmative sentences, questions, requests or commands with both countable and uncountable nouns। यानी कि चाहे हमारा नाउन काउंटेबल है चाहे हमारा नाउन अनकाउंटेबल है, हर तरह के नाउन के साथ हम इसको जो है यूज कर सकते हैं। There are some books on the desk। डेस्क के ऊपर जो है कुछ बुक्स रखी हुई हैं। सम यानी कि वो प्लूरल को, यानी कि चाहे वो प्लूरल है चाहे वो अनकाउंटेबल है, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों तरह के नाउन्स के साथ हम इनको यूज कर सकते हैं। Has got only a few dollars। How much money have you got? So you'll just practice this by reading। You'll pause the video। नीचे देखेंगे आप सभी only with uncountable nouns। कुछ ऐसे डिटर्मिनेट्स हैं जो सिर्फ अनकाउंटेबल्स के साथ आते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ काउंटेबल्स के साथ आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो दोनों के साथ आते हैं, काउंटेबल्स के साथ भी आते हैं और अनकाउंटेबल्स के साथ भी आते हैं। इन द लास्ट नीचे आप अगर देखते हो तो यू विल प्रैक्टिस दिस बाय पॉजिंग द वीडियो व्हेन यू गेट इट। सो यू विल रीड इट एवरीवन। Usage of quantifiers are as follows: few, a few, and little, a little। few and few, a few and the few for emphasizing lack of something। ये few जो है ना काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होता है बच्चों। there are few sweets left in the jar। के जार के अंदर कुछ ही चीजें मिठाई बची हुई है। few जो है ना के बराबर होता है। ना के बराबर मीन्स नहीं है ही नहीं बिल्कुल भी। few हम इसको यूज करेंगे। we should be careful not to eat them too quickly because they are almost finished। A few emphasis that something still remains। A few means कुछ चीजें जो हैं कुछ है तो उसके लिए हम लोग a few यूज करते हैं। We still have a few minutes left before the class gets over। Do you have any questions? Means कुछ minutes बची हुई हैं। A few means कुछ है और only few means ना के बराबर है ही नहीं है। Same little, a little, the little होता है बच्चों। लिटिल ना के बराबर अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। वी हैव लिटिल मनी राइट नाउ। वी शुड गो आउट फॉर डिनर अनदर डे। ठीक है, ना के बराबर मतलब पैसे ही नहीं है तो डिनर के लिए कैसे जाएंगे। ऑल लिटिल मीन्स एम्फोसिस दैट समथिंग स्टिल रिमेन्स, के कुछ जो है अभी भी है। देयर इज अ लिटिल आइसक्रीम लेफ्ट, हु विल ईट इट, कौन इसे खाएगा। तो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू जस्ट कंसीडर द थिंग्स। ना के बराबर जब चीज है तो ओनली लिटिल, सिर्फ लिटिल लिखेंगे, और कुछ है तो हम लिखेंगे अ लिटिल। व्हेन वी हैव समथिंग सो अ लिटिल लिख देंगे उसको, दैट समथिंग स्टिल रिमेन्स, की कुछ है। देयर इज अ लिटिल आइसक्रीम लेफ्ट, कुछ आइसक्रीम बची हुई है, हु विल ईट, कौन खाएगा। देयर इज नॉट इनफ आइसक्रीम लेफ्ट टू पुट बैक इन द फ्रीजर सो इट शुड बी ईटन, खा लेनी चाहिए। ठीक है बच्चों, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। फ्यू काउंटेबल्स के लिए, लिटिल अनकाउंटेबल्स के लिए। अब आ जाता है मच एंड मैनी। मच अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है और मैनी काउंटेबल के लिए यूज होता है, यानी प्लूरल्स के लिए यूज होता है। आई हैव गॉट मच चेंज, राइट, अनकाउंटेबल बात है, लेकिन आर देयर मेनी कंपोजिट्स नियर योर प्लेस। अब वो कहता है जब काउंटिंग की बात करेगा तो वहां पर वो यूज करेगा मैनी, अनकाउंटेबल की बात करेगा तो मच। वी यूजुअली यूज मच एंड मैनी विद इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आल्सो। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ भी यूज करते हो मच को और मैनी को। इज देयर मच एम्प्लॉयमेंट इन दैट एरिया, हाउ मेनी एग्स हैव नॉट बीन यूज्ड इन दिस केक, डू यू थिंक मेनी पीपल विल कम। यानी कि क्वेश्चंस जब काउंटिंग की बात करोगे तो मैनी, और क्वांटिटी और अनकाउंटेबल की बात करोगे तो मच। अब आ जाते हैं यूज ऑफ मोर, लेस एंड फ्यूअर। मोर काउंटेबल्स को हम लोग इसको शो करते हैं स्टूडेंट्स। इफ यू एनी वन ऑफ यू हैज डाउट, जस्ट नोट इट डाउन। इन सबको जो है नोट कर लेंगे सारे बच्चे, एंड यू विल बी गिवन टाइम टू आस्क द क्वेश्चंस एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चंस, देयर योर डाउट्स विल बी क्लैरिफाइड। नोट डाउन करते रहेंगे। सो कंपैरेटिवली जब आप यूज करते हो ना, कंपैरिजन शो करते हो, व्हेन यू शो द कंपैरिजन देयर यू यूज दिस मोर, लेस एंड फ्यूअर। मोर, वी यूज मोर और लेस बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। सिंगुलर की जब आप बात करते हो हम वहां पर मोर और लेस यूज करते हैं बाय एडिंग देन आफ्टर इट, और उनके बाद जो है देन लगा देते हैं भाई, ठीक है। और फॉर एन एडिशनल और लेसर क्वांटिटी ऑफ समथिंग, आई डू मोर वर्क देन सुरेश।
मोर को जो है देन के साथ हमने रिप्रेजेंट कर दिया, प्लीज गिव मी सम मोर सैलेड। अब मोर जो है सैलेड मीन्स वो कह रहा है जितना पहले दिया था उसके कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा। ठीक है बच्चों, सतीश डज लेस वर्क देन मी, कि वो मेरे से कम काम करता है। सो दैट मीन्स व्हाट वी अंडरस्टैंड these are used for the singular countable noun, right? More and less। लेकिन जब हम fewer की बात करेंगे, we use fewer before plural countable nouns to refer to the group or things smaller than another। दूसरी चीजों के कंपैरिजन में हम इनको यूज करते हैं। fewer students succeed in passing than the last one। fewer students यानी plural countable, students आ गया तो इसलिए few ने लगा करके fewer लगा दिया, fewer कंपैरिजन कर दिया इसके साथ हमने। ठीक है भाई, that's this। we had fewer computers a year ago। कुछ कंप्यूटर थे हमारे पास। we use of each and every now distributive determinants। We use each for two or more than two items and every more than two। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस बच्चों, देखो यूज को हम ईच को दो, टू और मोर देन टू आइटम्स, लेकिन एवरी को केवल दो से ज्यादा के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, नॉट मोर देन टू। both of these are followed by singular countable nouns। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के लिए हम इनको यूज करते हैं बेसिकली, एंड सिंगुलर वर्ब्स। और इनके साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएंगे और सिंगुलर वर्ब्स आएंगे इनके साथ। ठीक है, नोट करते रहो, डोंट रेज योर हैंड, just note down your points you want to ask and you'll get the clarification, you'll get the doubts। each of the two boys has won a prize। दो में से जब एक की बात करते हो या दो से ज्यादा में से एक की बात करते हो, each and every यूज करते हैं। every दो से ज्यादा और each दो या दो से ज्यादा में से। ठीक है, we use each when the number in the group is limited or defined the definite, but every is used when the number is indefinite or unknown। एक तो indefinite है, sure नहीं है, और unknown है। every person in the world has a parent। unknown भी है, indefinite भी है, sure right, अनिश्चित जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। each student in my class was promoted। प्रत्येक की जब आप बात करते हो right, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं each। use of most, several and all। ठीक है, we usually use most with the plural and countable nouns। plural and countable nouns के साथ हम लोग most यूज करते हैं अभी। ठीक है, most of the people can be trusted, countable और uncountable दोनों के साथ हम लग रहे हैं। most of the time uncountable है, I'm not at home, so countable है चाहे uncountable है, most यूज कर सकते हैं। We usually use several with plural nouns, but it refers to a number which is not very large। most से थोड़ा सा कम रहता है several, so इसको हम लोग यूज करते हैं इस तरह से। ठीक है, several people are crushed in the stampede। stampede होता है बच्चों भीड़ भड़ाका, भीड़ हो जाना बहुत ज्यादा। ठीक है, and several people lost their lives in the tsunami। so most से कम है लेकिन है ये भी countable, but this is also countable। all, अब all पे आते हैं। all requires a plural verb when used with a countable noun। जब काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं इसके साथ वर्ब प्लूरल लगती है, और जब अनकाउंटेबल के साथ यूज करते हैं तो सिंगुलर यूज होती है। ठीक है, ऑल आर गोइंग टू डाई काउंटेबल हो गया, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड अनकाउंटेबल हो गया। ठीक है, दिस इज वेरी, ऑल को दोनों तरह के नाउन्स के साथ यूज किया जा सकता है। यूज ऑफ अनदर एंड अदर, we use another only with singular countable nouns, whereas other can be used with singular, plural and uncountable nouns। चाहे वो सिंगुलर है, चाहे वो प्लूरल है, चाहे वो काउंटेबल है, अदर को हर तरह के नाउन के साथ यूज कर सकते हो, बट अनदर को सिंगुलर। ब्रिंग मी अनदर नाइफ, दूसरा चक्कू लेके आओ, सिंगुलर की बात कर रहा है। आई वुड प्रेफर द अदर हाउस, दूसरा सिंगुलर की बात कर रहा है। द अदर स्टूडेंट्स, प्लूरल। सो इस तरह से ये जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज होता है अदर। यूज ऑफ ईदर एंड नीदर, अब ये मेरी लैंग्वेज में समझ लो बच्चों, दिस इज इजी लैंग्वेज, ये आप खुद रीड करेंगे। दो में से एक ईदर और दो में से एक भी नहीं नीदर आप बात करते हो। वी यूज ईदर टू रेफर टू थिंग्स, पीपल, सिचुएशंस एटसेट्रा। इट मे मीन वन और द अदर ऑफ द टू, ईच ऑफ द टू। ठीक है,
आई डोंट अग्री विद इधर राम और श्याम, दो में से एक के साथ, वो कहता है आई डोंट अग्री, दो में से एक के साथ भी नहीं यहाँ पर बोल रहा है। वी यूज नीदर विद ओनली सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है ये, एंड सिंगुलर वर्ब उसके साथ यूज होती है। नीदर इज द नेगेटिव, ये ऑलरेडी मैं पढ़ा भी चुका हूँ। सो दिस इज ओनली अ प्रैक्टिस सेशन। नीदर ऑफ द टू बॉयज पास्ड द एग्जाम, दोनों में से किसी भी एक बच्चे ने एग्जाम को पास नहीं किया है, राइट। यानी कि जब आप एक को रेफर करते हो दो में से। नेक्स्ट वन इज पोजेसिव। पोजेसिव्स क्यों क्या करते हैं, माई, योर, हिज, हर, इट्स, आर, देयर, एटसेट्रा, ये सारे आप खुद स्टडी करेंगे। पोजेसिव्स का मीनिंग होता है जो मेरे पास कुछ है, पोजेशन होना किसी भी चीज का, राइट। दिस इज माई बुक, दैट इज योर बुक, ये बड़ा इजी पॉइंट है, हालांकि स्लाइड में दिया है, सो यू विल रीड इट योर सेल्स, और इनको लेकर के अगर कोई डाउट है यू विल आस्क इट इन द लास्ट राइट नाउ। ये सारा आप रीड आउट कर लेंगे, और इसके बाद अब जो है यू हैव गॉट अ टाइम टू पॉज द वीडियो एंड जस्ट रीड इट आउट। नाउ एग्जाम में इस तरह से तुम्हें जो है क्वेश्चन मिलने वाला है। द फॉलोइंग पैसेज हैज नॉट बीन एडिटेड, देयर इज एन एरर इन ईच लाइन, राइट द इनकरेक्ट वर्ड एंड द करेक्शन इन योर आंसर शीट अगेंस्ट द करेक्ट ब्लैंक नंबर। इनकरेक्ट और करेक्ट, अब ये ध्यान से सुन लो, ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू हैव द सब्जेक्टिव पेपर दिस टाइम, essay 1, सो यू लुक एट द आंसर कीज, और आपकी ग्रामर जो है 10 मार्क्स की रहेगी। 10 मार्क में जो है 4 मार्क्स का तो ये रहेगा आपका एडिटिंग। एडिटिंग इसी तरह से ओमिशन आती है 4 मार्क्स की, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, और रीअरेंज द वर्ड्स, यानी वर्ड्स को रीअरेंज करके सेंटेंस बनाना होता है, राइट, वो करना है। सो हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी। वंस देयर वाज द मैन कॉल्ड हसन, इस लाइन के अंदर क्या मिस्टेक है, व्हाट इज द एरर इन दिस लाइन, आपको मुझे ये बताना है व्हाट इज द एरर इन दिस लाइन। I am going to unmute you all. You will just raise your hand. I'm going to allow you to just unmute. कोई भी बच्चा अपने आप को unmute नहीं करेगा जब तक मैं नहीं बोलूंगा, because this is live session is going on. So दो सेंटेंस हम एक्सरसाइजेस करेंगे, दो एक्सरसाइज हैं, दो सेंटेंस करेंगे, and then we'll end up this. I have allowed भुवन, भुवन जो है अपने आप को अनम्यूट करेगा बस, और कोई दूसरा पर्सन जो है अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा, एनी स्टूडेंट। भुवन, हाँ भाई भुवन, ये बताओ कि व्हाट इज द एरर इन द फर्स्ट सेंटेंस, और उस एरर की जगह क्या आना चाहिए। भुवन बोलो बेटा। भुवन नॉट स्पीकिंग, बोलो भाई व्हाट इज द एरर इन द फर्स्ट सेंटेंस, आपने हाथ उठाया हुआ है। इट्स ओके, नॉट स्पीकिंग। पावनी। सर द की जगह आ आएगा। हाँ, सो द विल बी द इनकरेक्ट वर्ड इन द सेंटेंस, और द की जगह आ लग जाएगा। वेरी गुड पावनी भाई, दैट्स वेरी गुड आंसर। सो क्वेश्चन सेंटेंस क्या बन जाएगा हमारा, वंस देयर वाज अ मैन कॉल्ड हसन, ठीक है। इनकरेक्ट में आप दा लिखोगे, और करेक्ट में दा लिख करेक्ट में आ लिखोगे, और इनकरेक्ट में दा लिखोगे। इसी तरह से एग्जाम में तुम्हें क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है अब की बार। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ही वॉज वन ऑफ द मच ग्रेट। अब इसमें मुझे ये बताओ कि क्या मिस्टेक है। रेज हैंड करेंगे सभी बच्चे, जो जो बच्चे को आंसर मिल जाता है वो बच्चा जो है अपने हैंड्स रेज करेगा। ही इज वन ऑफ द मच ग्रेट। Just try any one of you. I have allowed to unmute yourselves. 2 मिनट है, 1 मिनट, सॉरी 1 मिनट है तुम्हारे पास, क्योंकि हमारे पास समय कम है। 7 मिनट्स हमारी क्लास को रह गए हैं। भुवन हाथ उठा रहा है, तो भुवन बताओ भी जल्दी, व्हाट इज द एरर इन द सेंटेंस, और गलती क्या है और उसको सही कैसे किया जा सकता है। भुवन।
There is a network problem, I think. Internet problem लग रहा है कुछ है. Bhuvan is not able to speak. We are not getting the sound. He may be trying, but we are not getting. Bhuvan, you are. Any one of you want to answer question? He was one of the. वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल यूज करेंगे हम लोग मैनी. वन ऑफ द मैनी ग्रेट लॉर्ड्स. मच जो है इनकरेक्ट में आ जाएगा और मच की जगह मैनी जो है करेक्ट में आ जाएगा. बाकी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस आप खुद करोगे. इन द नेक्स्ट लेक्चर यू विल गेट द आंसर्स. राइट एवरीवन? So let's go to the next slide. हाँ भाई, सेम इट इज गिवन द फॉलोइंग पैसेज हैज नॉट बीन एडिट. आप इस पैसेज को एडिट करना है, ऐसे ही करना है जैसे ये दिया हुआ है. और फर्स्ट एग्जांपल भी किया हुआ है. देखो फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, सेकंड को रीड करो. ए जो है, सी हियर मिस्टर एलिसन गिव मी. द ब्रेक की जगह अ ब्रेक हो गया, गिव मी अ ब्रेक. Want you, I have got to get a story or an editor will. Now इस सेंटेंस में क्या गलती है? What is the error in this sentence? और इसको आप जो है करेक्ट कैसे करोगे? How will you correct it? Read it and raise your hand everyone. अपना hands up करेंगे सारे के सारे. भुवन बार बार हाथ उठा रहा है लेकिन आंसर नहीं कर पा रहा है. हाँ भुवन, कम फॉरवर्ड. Unmute yourself and then speak the answer you get. I have got to get a story or an editor will first me. Bhuvan, not able to speak, not getting the sound of yours. Pavni, come forward, Pavni. Sir, in place of got, we have to put go. Why? Beta, have is the HV of perfect tense, तो उसके साथ हमेशा past participle verb यूज करते हैं हम लोग. That is the third form of the verb. तो got तो ठीक है क्योंकि वो have है. I have है वो. I have got to get. ठीक है? That is wrong answer. Try to find out. चलो, I'm telling you the answer because we have less time. In this, the same error is there. N की जगह द लगेगा. द एडिटर हो जाएगा क्योंकि ये स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर है. और द एडिटर यानी कि इनकरेक्ट में एन आएगा और करेक्ट में द आएगा. सो रिमेंबर दिस एवरीवन. लाइक दिस यू नीड टू एडिट द सेंटेंस कंप्लीटली. इसको एडिट करना है सभी को और प्रैक्टिस करनी है. यू विल गेट द आंसर की ऑफ इट.